Assalamu alaikum dear students, welcome to English Keys channel. I am Muhammad Naeem and today we are going to study unit number 16 of English grade 11th, and the topic for today's lesson is school versus education. So in this lesson we will discuss the difference between school and education. It is a very interesting lesson. You can just look at the title and the topic of today's lesson, and you can clearly understand and make an idea that what we are going to study today. So at the end of this lesson you will be able to analyze the passage, you will be able to recognize the theme, and you will be able to analyze the paragraphs to identify sentences that support the main idea, like through definition and examples and illustrations. And you will be able to understand that either it is a cause and effect essay or a comparison and contrast essay, or you will be able to understand the facts and analogies, anecdotes and quotations, and you will be able to create and deliver group class presentations on various themes, problems and issues, and you will be able to use the knowledge of roots, suffixes and affixes to determine the meaning of unfamiliar words, and you will be able to illustrate use of adverbs. So these are the things that we will cover in today's lesson. So first of all, we will read the lesson, we will try to understand what the writer wants to say, and after that we will do the question answers, and then we will do the grammar. So school versus means this word is used to confront two different ideas or two different teams, like you have seen in the cricket and football matches, like Germany versus Spain, and England versus Pakistan, etc. and etc. So by the age of 6 साल की उम्र तक, the average child will have completed the basic education and be ready to enter school. Now you just have to focus that how writer is using the words, how he is manipulating with the words, and trying to create a different trying to create a difference between these two different aspects. हमें लगता है कि शायद स्कूलिंग एंड एजुकेशन दे आर टू सिमिलर थिंग्स, बट एक्चुअली दे आर नॉट, और इसी चीज़ को ही राइटर ने इस ऐसे के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. तो अब यहाँ पे आप गौर करें, बाय द एज ऑफ 6 द एवरेज चाइल्ड विल हैव कंप्लीटेड द बेसिक एजुकेशन. अब घर में जो बच्चा 6 साल तक घर में जो सीखता है उसको राइटर एजुकेशन का नाम दे रहे हैं. एंड बी रेडी टू एंटर स्कूल. इफ द चाइल्ड हैज़ बीन अटेंटिव इन दीज प्री स्कूल ईयर्स, he or she will already have mastered many skills. तो कहना ये चाहता है कि 6 साल तक बच्चा बहुत सारी स्किल्स सीख लेता है. वो कौन कौन सी स्किल्स हैं? फ्रॉम टेलीविजन द चाइल्ड विल हैव लर्न हाउ टू पिक अ लॉक, commit a fairly elaborate bank hold up means robbery, prevent wetness all day long, get the laundry twice as white, and kill people with a variety of sophisticated armaments हथियार, जिनको हम जैसे पिस्टल वगैरह एटसेट्रा एंड एटसेट्रा. तो राइटर ये कहना चाह रहा है कि वो टीवी से ही इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें जो है वो सीख चुका होता है. अब इस पैराग्राफ को मजीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि जो छोटा बच्चा होता है, घर में हम टीवी देख रहे होते हैं, बाबा टीवी देख रहे हैं, या हम कोई मूवी वगैरह देख रहे होते हैं, तो बच्चा भी, जो छोटा बच्चा है वो भी साथ साथ देख रहा होता है, और हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं. हम कहते हैं कि ये छोटा बच्चा है, इसको क्या समझ आ रही होगी, लेकिन वो चीज़ें बड़ी गौर से देख रहा होता है. आप कोई रॉबरी मूवी देख रहे हैं या आप कोई भी प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उसमें जो चीज़ें, जो भी उसके अंदर कंटेंट डिस्प्ले किया जा रहा होगा, बच्चा उसको देख रहा होता है. अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी. दूसरा क्या होता है? फ्रॉम वॉचिंग हिज पेरेंट्स द चाइल्ड इन मैनी केसेज विल ऑलरेडी नो हाउ टू स्मोक, हाउ मच फॉल्सहुड टू मिक्स विथ फैक्ट्स टू बी प्रैग्मेटिक एंड श्रूड. के अपनी जो बात है उसके अंदर उसको मंतकी बनाने के लिए और उसको उस बात को स्मार्ट बनाने के लिए उसमें कितना झूठ मिक्स करना पड़ता है, ये भी बच्चा सीख जाता है. और ये वो चीज़ें जो हम अपनी रूटीन लाइफ में कर रहे होते हैं, जो हम झूठ बोल रहे होते हैं, बाहर कोई मिलने के लिए हम उसको कह देते हैं, बच्चे को भेज देते हैं कि जाओ उसको बोलो कि बाबा नहीं है घर पे. तो बच्चा इस चीज़ को लर्न कर रहा होता है. व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज टू यूज़ व्हेन एंग्री एंड हाउ टू वायोलेट द स्पीड लॉज विदाउट बीइंग कॉट. तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, और हमारे एक्शन से बच्चा जो है वो क्या होता है, लर्न कर रहा होता है. एट दिस स्टेज द चाइल्ड इज रेडी फॉर द सेकंड स्टेज ऑफ एजुकेशन विच अकर्स इन स्कूल. अब ये एजुकेशन उसने घर में सीख ली है, ये चीज़ें सारी उसने घर में सीख ली हैं. नाउ ही इज रेडी फॉर अनदर एजुकेशन दैट he or she will acquire in the school. There a variety of lessons may be learned in the very first days. The teacher may illustrate the economic importance of belonging to a strong union by closing down the school before the child arrives. बच्चा लेट हो गया, स्कूल का दरवाज़ा बंद हो गया, बच्चा नहीं आ सकता, तो उससे बच्चे को इकोनॉमिक्स
समझ आती है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस चीज़ों की समझ आती है कि अच्छा मुझे अगर छुट्टी होगी तो इसका मतलब है कि मैं जो फ़ीस दे रहा हूँ वो फ़ीस जो है वो एक दिन की जो फ़ी है वो सारी की सारी ज़ाया जाएगी क्योंकि मैंने उस दिन का लेसन नहीं किया। तो बेसिक जो ये पर्पज़ होता है कि जी आप स्कूल नहीं आ सकते या स्कूल से बच्चे को अगर उसका डिसिप्लिन ख़राब हो तो स्कूल से उसको निकाला जाता है या उसको पनिश के तौर पर रेस्ट्रिकेट किया जाता है। तो उसका पर्पज़ यही होता है कि बच्चे को जो इकोनॉमिक्स है, बेसिक इकोनॉमिक्स है, वो उसको समझाई जा सके। फादर्स एंड मदर्स में डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है खुद करके दिखाना। मे डेमोस्ट्रेट टू द चाइल्ड द सोशल कोहेजन जो सोशल इंट्रैक्शन होता है, मेल जोल होता है, दैट कैन बी बिल्ड ऑन शेयर्ड हेट्रेड बाय डेमोस्ट्रेटिंग देयर डिसलाइक फॉर चिल्ड्रन हुज पिगमेंटेशन डिस्प्लेजेस देम। पिगमेंटेशन जो छोटे छोटे धब्बे जिस्म पे हो जाते हैं। चूँकि राइटर अमेरिकन है और आप देखें कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं उनके क्लाइमेट की वजह से, उनके वहाँ के मौसम की वजह से उनके जिस्म के ऊपर हल्के हल्के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। तो अब जब नॉर्मली हम भी अपने घर में ये कर रहे होते हैं, उसका अच्छा फलां का बेटा पैदा हुआ है, फलां का बेटा तो काला है, फलां के बच्चे तो जो है ना वो उनके तो बाल इस तरह के हैं, वो फलां के बच्चे तो इस तरह से हैं। तो हम इस तरह की बातें कर रहे होते हैं और हम जो है ना वो हमारा ये जो बिहेवियर है उसी से ही बच्चा जो है वो नफरत करना सीख रहा होता है। इन द लेटर इवेंट बाद में द चाइल्ड मे रिसीव विजुअल इंस्ट्रक्शंस इन टेक्निक्स ऑफ स्टोनिंग बसेज। अब बाद में बच्चा जो है वो बसों को पत्थर मारना सीखता है। क्रैकिंग स्कल्स विद अ नाइट स्टिक, ठीक है। अब वो जब किसी पुलिस अफसर को देखेगा कि वो चित्रोल कर रहा है तो उसको पता चलेगा कि अच्छा चित्रोल इस तरह होती है। एंड सबड्यू का मतलब होता है काबू करना, टू कंट्रोल द मॉब्स, ठीक है, विद टियर गैस। तो ये सारी चीज़ें टीवी के ऊपर दिखाई जा रही होती हैं। बच्चा स्कूल आपको उसको लेके जा रहे हैं, रास्ते के ऊपर उसने देखा कि एक आदमी है, उसने टॉफ़ी खाई है या आइसक्रीम खाई है और उसने उसका रैपर नीचे फेंक दिया है। तो बच्चे ने वो चीज़ भी लर्न करनी है। तो बच्चा अपने सराउंडिंग से, यहाँ पे नेचर और नर्चर वाला जो कॉन्सेप्ट है कि बच्चे की एक तो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होती हैं जो बच्चे को कोई भी काम करने पे या कोई भी चीज़ सीखने पे मजबूर कर रही होती हैं। दूसरा वो जो उसका नर्चर है, जो उसकी सराउंडिंग्स हैं, उससे भी बच्चा क्या कर रहा होता है, लर्न कर रहा होता है। फॉर्मल एजुकेशन हैज़ बिगन, अब यहाँ से बच्चे की जो फॉर्मल एजुकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग फॉर्मल एजुकेशन द चाइल्ड लर्न्स दैट लाइफ इज़ फॉर टेस्टिंग। अब उसको ये समझ आती है कि ज़िंदगी क्या है, ये सारा का सारा जो ज़िंदगी का खेल है, ये सारा का सारा क्या है, इट इज़ लाइक अ टेस्ट। दिस स्टेज लास्ट 12 ईयर्स, 12 साल तक बच्चा जो है वो एग्ज़ाम ही देता रहता है। आप लोग भी इसी प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, हम लोग भी इसी प्रोसेस में से गुजर के आए हैं। तो बस इम्तिहान हो रहे हैं, अभी मंथली हो रहा है, अभी बाय मंथली हो रहा है, अभी सेमेस्टर के एग्जाम्स हो रहे हैं। तो मतलब जब तक हम पढ़ते रहते हैं हम इम्तिहान ही देते रहते हैं। अ पीरियड ड्यूरिंग विच द चाइल्ड लर्न्स दैट सक्सेस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सक्सेस कम्स फ्रॉम टेलिंग टेस्टर्स व्हाट दे वांट टू हियर। अब आप लोग भी इस चीज़ को समझते हैं, मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ कि ज़्यादा हमारा जो स्कूलिंग के अंदर फोकस होता है वो इसी चीज़ पर होता है कि बच्चों को वो चीज़ें पढ़ाई जाएँ जो एग्जामिनर चाहता है, जो एग्जामिनर चेक करना चाहता है। तो बस इसी चक्कर में ही हमारा सारा टाइम जो है वो स्कूलिंग का गुजर जाता है। एट दिस पॉइंट एजुकेशन बिकम्स मोर सटल। अब यहाँ पे जब वो स्कूल से निकलता है तो उसकी जो एजुकेशन है वो मज़ीद बेहतर हो जाती है, मज़ीद ओपन हो जाती है। द चाइल्ड टॉट बाय स्कूल दैट ही इज़ डम। अब जिस बच्चे को स्कूल में बताया जाता है कि तुम नालायक हो, जैसे चौथी पाँचवीं में कि तुम बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चे को हम कहते हैं कि तुम बहुत नालायक हो, तो वो जो नालायक बच्चा होता है जब वो ये ऑब्जर्व करता है दैट नीदर ही शी नॉर एनी ऑफ द मैनी चिल्ड्रन हु आर इवन डम्बर, तो बच्चा जब ये फील करता है कि जो जिसके नंबर मुझसे भी कम आए हैं, अगर मेरे 10 में से 7 नंबर हैं और मुझे टीचर नालायक कह रही है या कह रहा है, और जो 3 वाला बच्चा है वो भी जब वो देखता है कि वो कहाँ पे थे हम, नॉर एनी ऑफ द मैनी चिल्ड्रन हु आर इवन डम्बर इवन फेल्ड टू बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट ग्रेड। अब वो जब देखता है कि कुछ भी नहीं होता, मुझे नालायक भी कहते रहते हैं टीचर, लेकिन मैं फिर भी अगली क्लास में प्रमोट हो जाता हूँ, तो वो कहता है बस कोई मसला नहीं है। फ्रॉम दिस द चाइल्ड लर्न्स दैट वाइल एवरीबडी टॉक्स अ लॉट अबाउट द वर्च्यू ऑफ बीइंग स्मार्ट, कि वो बच्चे को, जो वो डम बच्चा होता है, वो उसको ये बात समझ आ जाती है कि ये सारे कह तो रहे हैं कि जो ज़हीन होना चाहिए, देयर इज़ अ वेरी लिटल इंसेंटिव टू स्टॉप बीइंग डम। तो उसको ये बात समझ आ जाती है कि अच्छा ज़हीन होना तो अच्छी बात है, लेकिन नालायक होने में भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अगर मैं नालायक होऊंगा तो उसमें भी कोई हार्ज या बुराई नहीं है। तो यहाँ से बच्चे का बिहेवियरल पैटर्न जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ स्कूलिंग बिसाइड्स अटेंडेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर बच्चे ने सारी चीज़ें माहौल से सीखनी है तो स्कूल में अटेंडेंस के अलावा बच्चे का क्या रोल है। द चाइल्ड वॉन्डर्स, अब बच्चा सोचता है कि मैं स्कूल में क्यों आ रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट फॉर्मल स्टेज ऑफ एजुकेशन अप्रोचेस स्कूल आंसर्स दिस क्वेश्चन।
अब वो बच्चे के ज़हन में ये जो सवाल आ रहा होता है कि मैं क्यों जा रहा हूँ स्कूल, स्कूल जाने का मेरा मकसद क्या है। तो जब वो 12 साल उसकी एजुकेशन मुकम्मल होती है, जैसे आपकी भी अभी फर्स्ट ईयर में, आप सेकंड ईयर के बाद चले जाएंगे, तो अब क्या है सेकंड ईयर के बाद क्या होगा, सेकंड ईयर के बाद सेकंड ईयर तक पढ़ने का मकसद क्या है, ताकि कॉलेज में एडमिशन हो सके। कॉलेज में पढ़ने का एडमिशन क्या है, ताकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सके। तो बस यही सारा खेल जो है वो चल रहा है। द पॉइंट इज टू इक्विप द चाइल्ड टू एंटर कॉलेज। ठीक है। अच्छा, चिल्ड्रन हु हैव बीन टॉट दे आर स्मार्ट हैव नो डिफिकल्टी। अब जो जिन बच्चों को ज़हीन कहा जा रहा होता है उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। दे हैव बीन हैप्पीली टेलिंग टेस्टर्स व्हाट दे वांट टू हियर फॉर 12 ईयर्स। अब वो 12 साल तक वो उस प्रोसेस से गुजरे होते हैं कि वो जो टीचर सुनना चाहते हैं वो उनको वो बता के आ रहे होते हैं, मतलब वो उस आर्ट के माहिर हो चुके होते हैं। बीइंग आर्टिस्ट एट टेलिंग टेस्टर्स व्हाट दे वांट टू हियर, दे आर एडमिटेड टू कॉलेज जॉयसली। उनको बड़ी आसानी के साथ कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। वेयर दे प्रॉम्प्टली लर्न दैट दे आर द होप ऑफ अमेरिका। तो वहाँ पे फिर बच्चे जो है ना, वो जब कॉलेज में जाते हैं तो वो अपने आप को बड़ा 30 मार्क समझना शुरू हो जाते हैं। वो समझते हैं कि बस हमने ही आगे जाके इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। Children whose education has been limited to adjusting themselves to their school's low estimates of them। अब जो मेरे जैसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल नालायक होते हैं अपने स्कूल के दौर में, तो वो बेचारे क्या करते हैं, दे आर एडमिटेड टू लेस जॉयस कॉलेजेस। उनका छोटे मोटे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है, विच इन सम केसेस मे टीच देम टू रीड, जहाँ पे समटाइम्स उनको वही सारा जो मटेरियल होता है वो उनको दोबारा से पढ़ना पड़ता है। एट दिस स्टेज ऑफ एजुकेशन अ फ्रेश क्वेश्चन अराइजेज फॉर एवरीवन। अब जब बच्चा कॉलेज में चला जाता है, स्कूल में तो वो सोच रहा होता है कि अच्छा मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। तो स्कूल में तो जैसे आप भी इसीलिए पढ़ रहे होंगे कि जी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाए, बस मेरा सीए में एडमिशन हो जाए, मतलब डिफरेंट तरह के आपके गोल्स होंगे और आप उन्हीं को सामने रख के तो आप जो है ना वो रट्टे मार रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ये वीडियो भी आप इसीलिए देख रहे होंगे कि बस मेरी इंग्लिश में मेरे अच्छे नंबर्स आ जाएँ। अच्छा, तो जब आप कॉलेज में चले जाएंगे आगे, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएंगे, मेडिकल यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, जहाँ पे भी चले जाएंगे, एट दिस स्टेज ऑफ एजुकेशन अ फ्रेश क्वेश्चन अराइजेज फॉर एवरीवन। इफ द पॉइंट ऑफ लोअर एजुकेशन वाज टू गेट इनटू कॉलेज, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉलेज? कॉलेज में क्यों आया हूँ? द आंसर इज सून लर्न। तो जब आप कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये पॉइंट भी समझ आ जाता है। द पॉइंट ऑफ कॉलेज इज टू प्रिपेयर द स्टूडेंट नो लॉन्गर अ चाइल्ड नाउ टू गेट इनटू अ ग्रेजुएट स्कूल। अब वहाँ पे अमेरिका के अंदर यही होता है कि पहले स्कूलिंग होती है, फिर उसके बाद आप कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के बाद फिर आप ग्रेजुएशन स्कूल में जाते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन स्कूल में फिर आप जाके आगे जो भी आपने स्किल पढ़नी होती है या सीखनी होती है वो आप सीखते हैं। इन कॉलेज द स्टूडेंट लर्न्स that it is no longer enough simply to tell the testers what they want to hear। अब वहाँ पे जाके बच्चे को ये समझ आती है, वो जो 30 मार्क खान होते हैं उनको वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी में समझ आती है कि सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा कि जी अच्छा रट्टे मार लिए और बस ये नोट्स बना लिए कि अच्छा ये नोट्स पढ़ लो तो अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो वहाँ पे जाके उनको फिर समझ आती है कि जी सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा। मैनी आर टेस्टेड फॉर ग्रेजुएट स्कूल, फ्यू आर एडमिटेड। क्योंकि वहाँ पे फिर क्या होता है, वहाँ पे अप्लाई तो लाखों की तादाद में करते हैं, लेकिन उनमें से सिलेक्ट कितने होते हैं? बहुत कम सिलेक्ट होते हैं। यही हाल पाकिस्तान के अंदर भी आप देख लें तो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो अप्लाई करने वालों की तो लाइनें लगी हुई होती हैं, लेकिन सीटें कितनी होती हैं? 40 सीट होगी, 35 सीट होगी, 50 सीट होगी। दोज एक्सक्लूडेड, जो लोग जिन लोगों का अच्छी कॉलेजेस में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं होता, वो जो एक्सक्लूडेड होते हैं, मे बी डिनाइड वैल्यूएबल सर्टिफिकेट्स टू प्रॉस्पर इन मेडिसिन, एट द बार, इन द कॉर्पोरेट बोर्ड रूम। ठीक है, तो उनको मतलब अच्छे जो फील्ड्स हैं उसके अंदर उनको एडमिशन नहीं मिलता, उनको वहाँ पे जो है ना वो उनकी एक्सेस वहाँ तक नहीं होती। तो ये क्या करते हैं, द स्टूडेंट लर्न दैट द रेस इज टू द कनिंग, कि ये जो दौड़ है, ये दौड़ किस बंदे की है? ये दौड़ सिर्फ चालाकों के लिए, चालाक लोगों के लिए। एंड ऑफ्टन अलाज टू द अनप्रिंसिपल्ड। और वहाँ पे उसको ये समझ आती है कि यहाँ पे चालाक बंदों की है, चालाक बंदे, और अफसोस के साथ चालाक भी वो कि जिनके अंदर कोई जिनके अंदर कोई प्रिंसिपल या जिनके अंदर कोई उसूल नहीं होता। ठीक है, तो यही वजह है कि आप देखते हैं कि लोग चीटिंग करके भी पेपर पास करके और कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। खैर, आप इससे इनकार करें या इससे आप एग्री करें या डिसएग्री करें, वो आपको मुकम्मल हक है, मुझे भी हक है, हर इंसान को हक है। तो बाकी जो मुसन्निफ कहना चाह रहा है हम सिर्फ उसके पढ़ने की हद तक हम उसको देखते हैं। बाकी आप यू आर ओपन, आप इससे एग्री करें या डिसएग्री करें। Thus, the student learns the importance of destroying competitors and emerges richly prepared to play his role in the great simmering melodrama of American life। अब melodrama
मेलो ड्रामा एक ऐसी कहानी होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन्स होते हैं और जिसको देख के आपको रोना आ जाता है। तो इस तरह के जो ड्रामाज होते हैं उनको मेलो ड्रामाज कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मेलोडी होती है, बहुत ज़्यादा जो इमोशनल प्ले होता है। तो होता क्या है कि जो ये स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कहीं पे भी एडमिशन नहीं होता अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो वो बस उनको ये समझ आ जाती है कि भाई ज़िंदगी एक रेस है और इस रेस में वही कामयाब है जो चालाक है। तो बस फिर वो जो है ना वो गलत सही की परवाह किए बगैर फिर वो जो उनके जहन में आता है, जो उनके सामने आता है, वो फिर उसको करते हैं। आफ्टरवर्ड्स द फॉर्मर स्टूडेंट्स डेस्टिनी फुलफिल्ड हिज लाइफ रिच विद ओरिएंटल कारपेट्स, रेयर पोर्सलिन एंड फुल बैंक अकाउंट्स के मतलब आपके पास जब सारी लग्जरीज आ जाती हैं, आप अपना घर बना लेते हैं और आपके घर के अंदर सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, तब जाके कभी ही मे वन डे फाइंड हिमसेल्फ विद द लेजर, तो उसके बाद फिर जाके कभी उसको टाइम मिलता है। एंड द इंक्लिनेशन झुकाओ, जब आप किसी चीज़ की रजामंदी आप इसको कह लें, एंड द इंक्लिनेशन टू ओपन अ बुक विद अ क्यूरियस माइंड एंड स्टार्ट्स टू बिकम एजुकेटेड। तो जब ये सारा कुछ हम कर लेते हैं तो उसके बाद कहीं जाके हमें मौका मिलता है और उसके बाद हम अपने आप को एजुकेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नीचे छोटी सी एक लाइन लिखी है कि मैनी ऑफ अस गो टू स्कूल फ्यू रिटर्न एजुकेटेड, कि हम में से एजुकेशन लेने के लिए तो बहुत जाते हैं लेकिन स्कूल तो बहुत जाते हैं, लेकिन उनमें से एजुकेट होकर बहुत कम लोग निकलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स को एंड पे करेंगे। सबसे पहले हम इसका ग्रामर का पोर्शन बिल्कुल छोटा सा 2 एक्टिविटीज हैं ये हम कर लेते हैं। पुट द करेक्ट प्रीफिक्स इन ईच, प्रीफिक्स जो किसी भी वर्ड के पहले लगती है, सफिक्स जो होती है जो बाद में लगती है, और अफिक्स होती है जो दरमियान में लगती है। पुट द करेक्ट प्रीफिक्स इन ईच ब्लैंक टू कंप्लीट द सेंटेंस, इंक्लूड हाइफन वेयर नेसेसरी, अगर आपको हाइफन लगाना हो तो आप भी वो भी लगा सकते हैं। द मल्टीलिंगुअल स्टाफ, इसमें मल्टीलिंगुअल आएगा। ही हैज़ बीन चार्ज विद मिस यूज, ठीक है। अच्छा, प्रो गवर्नमेंट forces have won the latest battle and the prime minister seems safe for the time being. This was an early prototype of an anti-aircraft missile. The meat was superb but the pasta was completely undercooked भी कह सकते हैं आप, और overcooked भी कह सकते हैं। undercooked अगर कच्चा हो तो, और overcooked अगर पक्का हो तो। अब पास्ता ऐसी चीज़ है कि undercooked हो तो भी वो मलीदा बन जाता है, जिस तरह वो कह रहे हैं and tasted like wet कार्डबोर्ड। अगर वो बिल्कुल कच्चा रह जाए तो भी वो इसी तरह मलीदा सा बन जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा पक जाए तो भी वो मलीदा बन जाता है। अच्छा, द शॉप वॉज क्लोज डाउन फॉर हैविंग सोल्ड सिगरेट्स टू अंडर एज कस्टमर्स, ठीक है। अच्छा, आई एम नॉट अ सोशलिस्ट नाउ, आई वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ एज एन एक्स कम्युनिकिस्ट। एक्स कम्युनिकिस्ट यानी कि साबका, तो पहले मैं कम्युनिज्म जो है उसको मैं फॉलो करता था, लेकिन अभी आई एम नॉट अ सोशलिस्ट नाउ, बट आई हैव चेंज माई ओपिनियंस ऑन मैनी मैटर्स। ओके, आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ लार्ज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमने कर लिया। उसके बाद ग्रामर में हमारे पास क्या है, एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स आर वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई वर्ब्स। एडवर्ब्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मॉडिफाई एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। तो इसमें हम देखते हैं, आपने ये एक्टिविटी को फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब्स। आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock, रूटीन बता रहा है, ठीक है। वंस नहीं आएगा, एवर भी नहीं आएगा। आई हैव नेवर बीन टू सऊदी अरेबिया। आई हैव बीन टू टर्की जस्ट वंस। अब जस्ट आ गया तो जस्ट के साथ क्या आएगा? वंस। I always take a bath before I go to bed. My grandparents live in Bannu. I visit them often. मैं अक्सर उनको visit करता हूँ। अच्छा, my friends are mostly non-smokers. I was very impressed. I sometimes go for walk in the park. I watch English films occasionally. ऑलवेज भी लगा सकते हैं, ओकेजनली भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑलवेज अगर लगाएंगे तो शुरू में लगाएंगे आई ऑलवेज वॉच इंग्लिश फिल्म्स, तो यहाँ पे ओकेजनली आएगा। दे रेयरली गो आउट। तो ग्रामर का पोर्शन बेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट व्हाट डज बेकर सी एज द डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड एजुकेशन? Answer is that the writer sees school and education as 2 different things. According to him, education means emotional, intellectual, behavioral and societal transformation. कि तालीम का मकसद क्या होता है कि इंसान जज्बाती तौर पर, जहनी तौर पर, अपने रवैये के एतबार से और एक मुआशरती इकाई के एतबार से अपने आप को तब्दील कर सके। According to him, schools are merely the places of grasping traditional information. अब मुसन्निफ के नज़दीक स्कूल क्या है? सिर्फ मालूमात इकट्ठी करने की जगह हैं। द स्कूलिंग सिस्टम फोकसेज ऑन प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टडी। द स्कूल्स आर नॉट फुलफिलिंग द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन। देयर फोकस इज टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिशन टू गेन मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट व्हाट कैन वी इन्फर? इन्फर का मतलब होता है नतीजा निकालना। व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट बेकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स टेलीविजन?
The writer says that televisions are playing a very key role in the mental and behavioral development of children at the early stage of their schooling. They can learn about different social aspects, habits, norms, and values of society. We can infer that he tries to highlight the issue of social media usage by parents. ठीक है कि जो पेरेंट्स हैं उनका इसके अंदर क्या रोल है बच्चों के सोशल मीडिया यूज़ के बारे में. ही वॉन्ट्स टू रियलाइज that children can learn dangerous things if their social media activities are not observed and monitored. Question number 3 is that Baker's tune is very cynical तंजिया in school versus education. और तंजिया भी और cynical होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा खिबती हो के या बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को बुरा समझ के आप बात कर रहे होते हैं तो आप सिनिकल हो रहे होते हैं. हम कहते हैं ना ये बहुत सिनिकल है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो कड़वी कड़वी बातें करता है और हर वक्त गुस्से में रहता है. To what extent do you think he means what he says? Explain. The writer seems cynical, but he is right to a great extent. हमें लगता है कि वो cynical है कि बहुत गुस्से में आके और जज्बाती बातें कर रहा है लेकिन काफ़ी हद तक उसकी बात दुरुस्त है. He unveils का मतलब opens, बेनकाब करना. He unveils the harsh realities of schooling system and states that our educational institutes are not focusing on their actual purposes. Despite focusing on the character building and personality development of the students, the educational institutes focus on rote memorization, रट्टा लगवा रहे हैं, of text and compel the students to study various things that have nothing to do with their practical life. तो ऐसी चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है. Question number 4 is that what is the main idea of Baker's essay? The writer has narrated his viewpoint in a simple and direct but ironical fashion. ठीक है, बात उसने बहुत सिंपल की है, डायरेक्ट की है, लेकिन उसने तंजी अंदाज में की है. अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन मीन्स इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, बिहेवियरल एंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन. अकॉर्डिंग टू हिम स्कूल्स आर मेयरली द प्लेसेस ऑफ ग्रास्पिंग ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन. द स्कूलिंग सिस्टम फोकसेज ऑन प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टडी. ये वही सारा जो है वो आंसर रिपीट हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑब्वियसली द लास्ट क्वेश्चन इज दैट पिक आउट सम ट्रांजिशनल डिवाइसेज from the text school versus education. What purpose do they serve? अब transitional devices क्या होती हैं? ये transitional devices they are used to connect different ideas और sentences in a narration. Transition के लिए यानी कि जैसे बात को जब आप मुंतकिल करते हैं, transition का मतलब होता है एक जगह से किसी चीज़ को दूसरी जगह मुंतकिल करना. तो transitional devices बेसिकली किसी भी आइडिया को जो है वो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की तरफ शिफ्ट करने के लिए यानी कि दोनों को आपस में लिंक करने के लिए यूज होती हैं. द ट्रांजिशनल डिवाइसेज आर यूज टू क्रिएट कोहेजन एंड कोहेरेंस इन द टेक्स्ट. द राइटर हैज़ यूज ट्रांजिशनल डिवाइसेज लाइक दस. ये वाली डिवाइसेज जो हैं ये उसने यूज़ की हैं. ठीक है, ये वाली दस, आफ्टरवर्ड्स, देयर, बट, बोथ, नीदर एंड नॉर. द राइटर हैज़ यूज्ड these devices to make his essay artistic, formal and comprehensive. So today's lesson is over. If you have any question or if there is any confusion in the lesson, you can simply write it in the comment section and I will answer your questions. So take care of yourself. May God bless you. Allah Hafiz.